All right, I'm giving you an assignment और आपको मैसेज लिखना है। क्या मैसेज लिखना है? How are you going to advise others to play Holi? Your tips of playing Holi, your tips for celebrating Holi. ठीक है, हम देखते हैं भी अब जितने भी लोग हैं उसमें कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 5 लोग हैं। अब सीरियली आपको रिजल्ट अनाउंस कर देंगे आज ही। आपको टाइम मिलता है 10 मिनट्स टाइम, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, लेकिन अपने वर्ड में लिखिएगा, अपने वर्ड में बोलिएगा। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 10 मिनट्स। व्हाट इज योर advice for others to celebrate Holi? आपका ये मैसेज सोशल मीडिया पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए अच्छे से लिखिएगा। योर टिप्स, योर सजेशंस फॉर होली।
आप लोगों ने कैमरा क्यों बंद कर रखा हुआ है? People switch on your cameras. कैमरा ऑफ मत करिएगा, क्लास चल रहा है ना ये। You can raise your hands once you have finished. Priya, done. Good afternoon, everyone. My name is Riya Bhadra, and I'm from BCom first sem. Today, I'm going to give my few of advice for the Holi. First of all, Holi is a festival of color. It is a festival of joy and happiness. For my first of all advice for Holi is make sure that you use a proper quality of color. 1 minute, Priya. Yes, 1 ma'am. minute. Yeah, start again. Hello, good afternoon, everyone. My name is Riya Bhadra, and I am from BCom first sem. Today, I'm going to give my few of advice on for the festival of Holi. Holi is a festival of joy and happiness. Everyone enjoy this festival. This festival is really important to us because it shows that how well together we are with everyone. The colors are very joyful to us. If I give one, I'm going to put some of my advice for this festival. The first and foremost is the color. Make sure you use a good quality of color, and don't put colors on those who says that they don't want to put, because it you shows that no, you says that it bura na mano holi and just put the color. Don't do so, because so everyone has their own problem, because might have the person who is saying that don't put color either because of his screen problem or another thing.
and don't misbehave with others in the name of the festival as well. Always respect other, because festival is just for the thing to bring everyone together. It doesn't mean at any point to disrespect anyone. So don't do so. Second thing is, as we know, when we play with colors, so there is a bad effect that either our hair is full of colors or our skin is full of the colors. It takes around 2 to 3 days to get rid of that colors. So my foremost advice is, try to put some oil on your skin before you play with that, and don't put oil on your head before you play with colors, because the color is going to stick on your hair for a long time and become very difficult to wash off that. And lastly, have some lassi and enjoy with your friends, family, loved ones, and make sure this festival brings joy and happiness for everyone. Don't show any hatred for anyone, because festival are meant for being together. So enjoy this festival, and that's all. Have a happy Holi. Yeah, Ria, that was very good. Yes, next. Next. People are still writing. ये कैमरा क्यों बंद है आप लोगों का? कैमरा बंद नहीं होनी चाहिए. कैमरा बंद और रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से. तो कीप योर कैमरा ऑन. तुम लोग एक बीमारी है कैमरा ऑफ कर देने की. चलिए रिया भद्रा का हो गया. And now we have yeah. किसी का हाथ नहीं उठ रहा है. मैं उठा रही हूँ हर किसी का. चलो. चलो. Good evening, ma'am, and my dear friends. Today I am. Wait, but just hold on. Yeah, start. Good evening, ma'am, and my dear friends. Today I am give some advice for celebrate to other holies. For holies, Holi is a Hindu festival of colors and celebrate once a year in a March. And growing up in a Hindu household, I absolutely loved the separate that along with the celebrating Holi. The first of all, Holi is the on Holi, happy Holi. This year Holi on March 18, the festival is celebrated with much pomp. Holi is also known as the festival colors is religious. There are some information that the how I will celebrate to Holi's. First of all, apply anti-stain varnish on the internal and external walls of your home. Purchase eco-friendly powders. When purchasing gulal powder for throwing or mixing with water, make sure you buy non-toxic plant-based ones. Cheap brands in the bazaar can be harmful both to your body and the environment. Use masks and sanitizers following the basic COVID protocols in mandatory. Use organic colors. Holi celebration also brings with it is a fear of harming our eyes, skin, and hair with harmful chemicals. Ma'am, thank you, ma'am. Okay. And now there's Preeti Kumari. Yes, Preeti. Yes, ma'am. Good morning to all. My name is Preeti Kumari from Become First, and today I am give some advice for Holi celebration. First of all, Holi is one of the most colorful and popular festival of Hinduism. The concept of Holi is the victory of God over evil. It is the sign of color of love, happiness, and togetherness. May this festival of colorful colors of your life. I wish you a great health,
health, happiness, Holi. Enjoy every moment and play safe, Holi. Wishing you a very happy Holi. Thank you, ma'am. Okay, very good. Okay, now the other Preeti. Yes, ma'am. Good morning, everyone. My name is Preeti from BCom First Sem. My roll number is 17, and I'm going to present uh, about Holi. Holi is a Hindu festival, and it is also known as Festival of Love, the Festival of Color, and the Festival of Spring. And some advice to celebrate Holi. First, use organic color. Don't put colors on animals, and don't use previous year's colors because it's expire and it's a reaction to skin. Yes, ma'am. हो गया, चलो. Roll number 43. Yes, ma'am. Good evening, ma'am, and my dear friend. My name is Nikki from BCom First Sem. The Festival of Color is just a few days away, and if you are looking to celebrate it with great joy, this year make sure you exercise some precaution as well. Remember that the festival is all about happiness, and it should be celebrated in the same spirit. Protect your eyes at all costs because they are important. Here are some things that you must remember. Don't use toxic colors. Go for organic and herbal colors and this the pakka rang. Never rub eyes. Tie up your hair. This festival brings people closer and spread lots of love and brotherhood among the people. Thank you and happy Holi. Okay, you too. Now we are almost 59. Switch on your camera. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Holi is the known as Festival of Colors. It is one of the most important festival in India. Holi is celebrated each year. Holi is celebrated each year with zeal and enthusiasm in month of the March by followers of the Hindu religion. These who celebrate this festival wait for this every year and eagerly to play with colors and have delicate designs. Thank Okay, then there's roll number 5. Roll number 5. Swapnil. कैमरा तो ऑन करो. चलिए, इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है. फाइन. चलिए, if you have anything to say, आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं. कुछ पूछना है? और देख रहे हैं, पढ़ने का मूड किसी का है नहीं. कि पढ़े? मैम, हम्म. मैम आप ग्रुप में लिंक सेंड नहीं कर की थी क्या? ग्रुप में लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं है. रिकरिंग मीटिंग है ना, उसी एक ही लिंक पे जाएगा सारा क्लास. लिंक
शेयर करने की जरूरत नहीं है, एक बार हो गया हो गया। तो चलिए, किसी को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं आप। गुड आफ्टरनून मैम। चलो उत्कर्ष भी आ ही गया, चलो इसको पूछते हैं। चलिए आप भी सबको विश कर दीजिए होली, और कोई मैसेज देना है सबको तो कर सकते हैं। तुम ब्लू क्यों नजर आ रहे हो? मैम लाइट ऑन नहीं है, खिड़की ब्लू है। चलिए, तो सबको हैप्पी होली विश कर दीजिए, और कोई मैसेज देना है दे सकते हैं आप। मैम किस टाइप का मैसेज मैम, नहीं समझे। तो समझे ही नहीं तो क्या करना क्या? मैम होली के बारे में बोलना है या फिर मैम? अभी तुम लोगों को सुना ना। मैम थोड़ा सा ही सुने थे, तो रूपम बोल रही थी होली के बारे में ही, हाँ, तो ऐसे वही टाइप सब। का। हाँ, ओके मैम, first of all, good afternoon, everyone, and I wish you all a very happy and very colorful Holi. So, I'm going to speak something about Holi. That Holi is the famous festival of Hindus. It is a festival of colors. It is celebrated in the month of March. It is celebrated all over the country with joy. On this day, everybody looks very colorful, and children spray colors and rub gulal to each other. On this day, people forgot old enemy and come together. Holika Dahan happens before a day of Holi. On this special day, sweets and dishes are prepared at home, and many types of dishes also. Holi is a beautiful festival full of friendship and love. Thank you, ma'am. मिस अहमद जो है, आप कैमरा क्यों बंद किए हुए हैं? चलिए कुछ आप भी कुछ बोलिए। हेलो। चलिए, व्हाट टू डू आप बताइए। शुड वी रीड समथिंग? चलो, अब क्लास शुरू ही हो गया तो पढ़ते हैं। चलिए आज स्मार्ट गोल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्मार्ट गोल्स क्या होता है? Somebody please read. Hello. Whatever you see on the page, write that down. Smart goals. स्मार्ट का एस है स्पेसिफिक, एम का है मेजरेबल, ए का है अचीवेबल, आर का है रेलेवेंट एंड टी का है टाइम बाउंड। कोई भी चीज करने के पहले हम प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और उसी प्रोग्राम के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़नी है, तो स्मार्ट गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर अभी आपसे पूछते हैं कि 6 मंथ्स के तक आपका क्या गोल्स है, क्या क्या प्रोग्राम आपका है, तो वो आपका हो जाएगा योर सेटिंग गोल्स। प्लीज राइट डाउन व्हाटएवर यू सी एंड देन आई विल एक्सप्लेन।
SMART एक्रोनिम है, पूरा फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? हेलो। मैम पार्टिकुलर। हाँ, पर्टिकुलर, कोई खास, स्पेसिफाइड है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरेबल? इसे मेजर कर सके। कि कितना कम हुआ, पूरा हुआ कि नहीं, यू कैन मेजर। व्हाट इज अचीवेबल? मैम कोई चीज मतलब अचीव कर सकते हैं, मतलब पाना। गोल जो बनाइए जो अचीव कर सके आप। व्हाट इज रेलेवेंट? मतलब जरूरी है। Something- हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? समथिंग विच इज रेलेवेंट, समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। और टाइम बाउंड का मतलब है कोई गोल सेट करते हैं उसका एक टाइम फिक्स होता है, 2 दिन में कर लेना है, 3 दिन में कर लेना है, 6 मंथ्स में कर लेना है, ठीक है। और आपको हम बताएंगे कि आपको बनाना होगा अपना गोल्स, स्मार्ट गोल्स, क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या करना है। आपके सिर पे एग्जाम भी है, उसके पहले क्या क्या चीजें कितने दिन में खत्म कर लेना है हमको। तो स्मार्ट जो है SMART है वो है निमोनिक एक्रोनिम। निमोनिक का मतलब होता है रिमाइंडर। एक आप अपने लिए बनाते हैं एक रिमाइंडर जिसको कहा जाता है स्मार्ट गोल्स। इट इज अ रिमाइंडर कि आपको ये काम कर लेना। अगर आप लिख लेते हैं then you will not forget कि हमको ये सब करना है। So it is a reminder giving criteria to guide in the setting of the goals. गोल सेट करने में आपको गाइड करेगा, रिमाइंड करेगा। किस चीज के लिए? टू सेट यू अप फॉर सक्सेस, ताकि आप सक्सेसफुल बन के निकल सके। टू मेक अ गोल स्पेसिफिक कंसिडर द 5 W's। किसी भी गोल को स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या क्या करना होता है? राइट डाउन 1 2 3 4 5। The 5 W's। मैम Yeah. मैम ये टॉपिक हमारे करिकुलम से रिलेटेड है। हाँ हाँ। जैसे आप लास्ट पेज पे हैं, जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे राइटिंग, तो उसमें ये सब चीजें हैं। स्मार्ट गोल्स जब तक नहीं बनाएंगे आप तो रिज्यूमे का ऑब्जेक्टिव आप नहीं कैच कर पाएंगे कि कितने से कितने समय में मुझे अपने को तैयार कर लेना हो। और एक ही में बिजनेस कम्युनिकेशन या टेक्निकल कम्युनिकेशन को कंबाइन करके क्वेश्चंस आता है। तो जो बताया जा रहा है सिलेबस में वो तो है ही है। आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चंस आता है एनीथिंग अंडर टेक्निकल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन को कहा जाता है ब्लड लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों कहा जाता है? ये सब चीजें हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप समझ में आपको आएगा कि क्या किस तरह का क्वेश्चन आता है।
तो सबसे पहले स्मार्ट गोल्स आपका क्या है कि देखना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आना है, नहीं आ रहा है। तो पहला क्या है, हु इज इन्वॉल्व इन दिस गोल। अब इस आपके इस लक्ष्य को पूरा करने में कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, किसका किसकी 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 मदद आपको चाहिए, हु। सेकंड इज व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, मुझे क्या हासिल करना है। नंबर 3, वेयर इज दिस गोल टू बी अचीव्ड, इसको खत्म करने में, इसको पूरा करने में मुझे कौन सी जगह की मदद लेनी पड़ेगी, कहाँ करना, कहाँ से ये अचीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने वाली सारी बातें आपको क्लास में ही हो सकता है, क्लास करके हो सकता है। When do I want to achieve this goal, मतलब टाइम बाउंड, कि कब तक ये मुझे ये गोल हमारा ये हो जाना चाहिए, टाइम बाउंड। Why do I want to achieve this goal, और इस गोल को आप अचीव क्यों करना चाहते हैं। ये आप इसको कंपाइल कर लीजिए। What is important for you? Setting smart goals is important for everybody, right from first semester to final semester. आपका प्लान क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो आप बारी बारी आप बताइए कि आपका गोल स्पेसिफाइड है कि नहीं, अचीव किया जा सकता है कि नहीं, मेजर किया जा सकता है कि नहीं, कितना बाकी है, कितना नहीं करना है, कितना हो चुका है, कितना नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, रेलेवेंट है कि नहीं, इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट नेसेसरी, एंड am I fixing a time bound. Am I fixing a time, a deadline? Is my goal time bound? Finished writing? सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब आप बताइए, हाउ आर यू गोइंग टू सेट योर गोल्स। सामने लक्ष्य क्या आपका एग्जाम है, एग्जाम के होने तक अभी से लेके यू हैव सम 1 वीक्स टाइम। अब क्या गोल्स आपका है, आप बताइए। मतलब कि क्या, व्हाट इज योर प्रोग्राम। सब्जेक्ट सारे होंगे आपके, तो कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करने में कितना टाइम लगना है। सेट योर सेल्फ स्मार्ट गोल्स, इंक्लूडिंग कितना पढ़ाई करनी है, कितनी आवर्स पढ़नी है, कब करनी है। चलिए, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस, जो आपको याद रहेगा और आप लिखेंगे। हाँ बताओ, किस तरह से तुम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करोगे अपना। अगर तुमने गोल्स नहीं बनाया है, गोल सेट नहीं किया है, तो कैसे होगा। यू नीड टू सेट योर गोल्स। मैम, हम्म, ये एग्जाम गोल है कि लाइफ गोल्स है। लाइफ गोल्स नहीं है, एकेडमिक गोल्स फॉर योर सक्सेस। लाइफ गोल्स नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट अभी, अभी मैं बताया ना मैंने आपको, अभी एग्जाम सामने आपका है, अभी से उस समय तक तुम्हारा क्या क्या प्रोग्राम है और किस तरह से तुम अपनी प्रोग्राम बना के इस गोल को सेट कर रहे हो और अचीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम के लिए आप ज्यादा पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या है, स्टडी आवर्स। और सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वीक है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप बना के एक चौकआउट करके दिखाइए हमको।
Your goal should be to do well in your exams. उसके लिए क्या क्या process आपका है? In other words, अब बताया जा रहा है कि अपना आप टाइम टेबल बना रहे हैं, पर्सनल टाइम टेबल. कितने से कितने बजे तक, कितने से कितने घंटे, कितना चीज अचीव कर लेना है इन घंटों में. स्मार्ट गोल्स बनाना तो हर किसी का काम रहता है. जब तक कि आप रिटर्न बनाते नहीं है, स्केड्यूल नहीं बनाते हैं, तो यू कैन नॉट मूव अहेड. कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है. ठीक है, इसलिए बनवाया जा रहा है आप लोगों को. चलिए, somebody please start.
बन गया? Come on, read. चलो प्रीति, क्या लिखा तुमने? यस मैम। बताइए। मैम एक्चुअली ना मैं सही से फॉर्मुलेट मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई कॉपी में। क्यों? पता नहीं मैम, मैं एक्चुअली बोल के बता देती हूँ। हाँ चलो बोलो। Yes, ma'am. In morning 5 to 7 a.m. accounts for 2 hours, 2 hours क्योंकि मैम अकाउंट्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है तो इसके लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। और उसके बाद मैम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि 6:30 to 8:30 मैम, इसका जो लेंदी मतलब इसका चैप्टर है जो कि बहुत ही लेंदी है, तो हमें उसके लिए भी चैप्टर को विद इन 2 वीक्स कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम मैम उसको भी हमने 2 आवर रखा है। बिजनेस स्टैटिक को मैम मैंने ऑल्सो 2 आवर दिया है क्योंकि मैम उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल रहता है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर रहते हैं जिनको बनाने में बहुत ही तुम टाइम सबका स्पेंड दो होता दो है। घंटा रखी हुई हो तो क्या तुम 8 घंटा पढ़ दोगी एक लगातार? नो मैम, उसमें क्या तो था? मैंने ब्रेक अचीवेबल करके ना, जो बताया जो ना। तुम कर सको वही ना कर सकती हो। यस मैम, तो मैंने अब ऐसी बात तो नहीं है अप्रोक्सीमेट कि तुम 8 घंटे तुम पढ़ सकती हो। गोल्स ऐसा मैम बनाओ मैंने कि जो कि अचीव हो सके, जो कि रेलेवेंट हो, जरूरी हो। ठीक है? मैम मैंने स्टार्टिंग का जो सुबह में मैंने टाइमिंग बताया वो 5 AM to 7 AM था, ये मॉर्निंग था। मैंने मैम जो ऑर्गेनाइजेशन के बताया वो भी शाम है, जबकि 6 o'clock में हमारी क्लास एंड हो जाती है आफ्टर 30 मिनट 6:30 to 8:30 मैम। तो इतना तो होता है मैम क्योंकि इतना जितने होमवर्क मिलते हैं उनको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट सारा टाइम लग जाता है मैम इतना, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। और स्टैटिक्स जो है मैंने रखा है वो मैम ब्रेक जो हम लोग को मिलता है आफ्टर 1 o'clock, उसके बीच में मैंने एक टाइम रखा है। मैम मैंने एक्चुअली लिखा है बट मैम मुझे पता है बट मैं सही से फॉर्मुलेट नहीं कर पा रही हूँ। तो आपका ये जो गोल जो बना रहे हो तो अचीवेबल नहीं है तुम्हारा ना। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी गोल आप बना रहे हैं उसको इट शुड बी मेजरेबल, कि हाँ इतना मैं कर लूंगी, मैं इतना मैम अचीव कर सकती अप्रोक्स हूँ, है ना? मैम तो ऐसा गोल मत अप्रोक्स बनाइए कि डेली जो आप अचीव नहीं कर सकते। रेलेवेंट तो है सब, यस है ना? यस मैम, लेकिन मैम बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को इतने होमवर्क मिलते हैं 5 सब्जेक्ट में कि हम लोग को ना चाहते हुए भी 7-8 आवर तो टाइम देना ही पड़ता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट रहते हैं, उसका रिवीजन फिर होमवर्क फिर अगला चैप्टर का रिवीजन, इसलिए मैम हम लोग को उतना चैप्टर तो मतलब देना ही पड़ता है। ब्रेक ले लेके आफ्टर 15 मिनट्स बट हम लोग को उतना टाइम देना पड़ता है मैम। हो सकता है कि लेकिन डेली लेकिन ये गोल मतलब रूटीन। अचीव का मतलब होता है कि ये लेसन समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। मैंने दो यस घंटा मैम, यस पढ़ मैम, लिया, 2 घंटा पढ़ लिया तो अचीव थोड़ी ना हुआ जब तक कि तुमको समझ में नहीं आया हो, मतलब कंप्लीटेड। यस मैम। ठीक है? मैम मैंने कहा कि जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में हम लोग का ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर एक क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट्स का बनाया, अगर उसमें बाय मिस्टेक थोड़ा भी एरर हो गया तो हम लोग को रीचेक करना पड़ता है, तो मैम वो सब सब्जेक्ट है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैम जैसे मैंने इंग्लिश का बनाया फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एजेंडा लिख रही है तो हो सकता है उसमें ग्रामेटिकल एरर भी आ सकते हैं,
तो मैम इस समय ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो मैम एक ही टॉपिक में हम लोग को ऑलमोस्ट लग जाता है, क्योंकि मेरा ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए टाइम उतना स्पेंड हो जाता है मैम। तो इसलिए मैम मैंने ऐसा आपका बनाया। गोल है, अगर आप अचीव कर लेते हैं तो वेल एंड लाइक इट। ऐसा नहीं कि मुझे 2 घंटा पढ़ा, मैंने 2 घंटा पढ़ लिया इसलिए कि मैंने 2 घंटा लिखा है। अब यस पढ़ा मैम, है और समझ में आया 2%, तो यू हैव नॉट अचीव्ड दैट गोल। यस मैम। इसलिए ना मैम मैंने ऐसा लिखा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, तो हमको पहले थ्योरी समझनी पड़ती है, इसके बाद ही हमसे प्रैक्टिकल सॉल्व होता है अकाउंट्स में। इसलिए अगर हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते थे, उसी के बेसिस पे हम प्रैक्टिकल बनाते, तो प्रैक्टिकल में हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा टाइमिंग कंज्यूम करता है। अगर हम एक भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें यानी 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं मैम। अब वो भी सही से प्रोसेस हुआ, अगर कुछ बीच में एरर आ गया तो उसको फिर क्वेश्चन को रीचेक करना पड़ता है, तो इसमें टाइम स्पेंड हो जाता है मैम। मैंने इसलिए ऐसा बना। ऐसा नहीं है कि मैं इतना पढ़ती हूँ और कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसा कुछ फायदा ही नहीं है इतना पढ़ने का। गोल बनाने का मतलब ही है कि आप अटेनेबल हैं, अचीवेबल हैं, मेजरेबल है कि हाँ इतना हम कर लेंगे। मैंने पहले कहा 8 घंटा तो कोई पढ़े, सवाल ही नहीं है। मैम 6 आवर तो मैम हो जाता है ना, आप टाइम सेट कर देखिए मैम, हो जाता है 6 आवर। एक्चुअली हम लोग का होमवर्क करने में और रिवीजन करने में टाइम 6 आवर मैम लग जाता है। चलिए आप अगर कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। पता Yes, ma'am. UPSC clear है first attempt. ये कैमरा बंद करके कौन बोल रहा है? चलिए क्लास एंड कर रहे हैं आज। एवरीबॉडी हैप्पी होली एंड सेम टू यू Same to you, मैम। ma'am. Really, yeah, ma'am. take care, play safe, be safe, take care.